Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer, and once again I have been in front of you guys. I hope you must be enjoying all my videos and whatever lecture I have given you up till now. So many topics I have taught you, and you have taken every topic very seriously, and you have given me positive feedback, and you exactly have come up to my expectation, and I have also left no stone on account of coming up to your expectation as well. So I think today I have brought to you another topic, but before starting that topic, don't forget to subscribe me, share my videos, and comments about me, and press the bell icon so as you could be able to get further notifications of my videos on YouTube. आप कोशिश कीजिएगा कि इसको, आज के टॉपिक को जो मैं देने वाला हूं आप लोगों को, जो डिलीवर करूंगा मैं अपनी तरफ से आपके लिए, ताकि आपकी बेहतरी हो। मैं आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। You have to make the most of this opportunity and you have to utilize English in a daily routine. और कोशिश रहती है कि कुछ नया लाया जाए, कुछ नया टॉपिक लाया जाए। आज का टॉपिक है it's going to be very handy for those students who are having problem, especially sometime it happens to be, ये होता है कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, all of a sudden अचानक से some of the very complicated things, what should I say, that create so many problem for you. आपके लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर देती हैं। आप सोचते हैं कि वर्ड है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करें। वैसे तो इस वर्ड की मीनिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर देखा जाए कहीं पर कंडीशनल जुमलों में ये अल्फाज आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के हल के लिए आई हैव ब्रॉट टू यू दिस टॉपिक. Most of this, even one of my student asked me that why you don't impart this topic. This topic is going to be very nice for the student, because most of the student they will be having problem. तो मैंने सोचा कि क्यों ना I think I should impart this topic to rest of those people who are having some complications in such things like this word which exactly he told me about, and today I am going to tell you about this word. This word is going to be very beneficial for you if you are going to listen me, and if you are going to watch my video till the end. I think it's gonna be very what should I say, that handy for you. It's gonna be very beneficial for rest of those quick learner. Quick learner of English means if you want to learn fast, because we are in this era. It's a fast era, so we have to make the most of everything. We have to do fastly. We are in hurry because we haven't got good enough time, because we have to go fast. So I think this word I have brought to you, it's very nice word, and the topic which I have chosen, the word I have taken, one of the word I have taken from the newspaper. I hope you are going to enjoy this word and you are going to utilize this word in your daily conversation. And here we go. I should start. This word is unlike, not like, unlike. UNLIKE, unlike. अनलाइक का इस्तेमाल आ गया कहीं पर, किसी भी जगह पे आ गया, ये आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर मैं बात करूं अनलाइक का मतलब क्या है, तो अनलाइक का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता। अनलाइक वो लोग सोचते हैं नापसंदीदा, कोई बोलता है नापसंदीदा, पसंद नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इसकी मीनिंग ये बनती ही नहीं है। बहुत से लोग सकते हैं अनलाइक, अनलाइक माने नापसंदीदा। अच्छा, मैंने किसी से पूछा भाई अनलाइक का मतलब क्या, तो बोलने लगे कि इसका मतलब है अनलाइक, मैं पसंद नहीं करता। वो तो डिसलाइक होता है, आई डिसलाइक, शी डिसलाइक्स, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अनलाइक जो है वो एक अलग किस्म का वर्ड है और ये अलग मीनिंग देता है। अनलाइक की मीनिंग क्या है, आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। अनलाइक का मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट माने मुनफरिद, अनलाइक माने डिफरेंट, डिफरेंट माने मुनफरिद। यानी अगर मैं बोलूं यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट इंग्लिश, तुम इंग्लिश में अच्छे हो, बट
You know, your friend is unlike in many respect. तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, इंग्लिश में बहुत मुनफरिद, यू नो, डिफरेंट है वो. वन ऑफ द ग्रेट स्पोकन पर्सन, वन ऑफ द ग्रेट कॉन्वर्जेशनलिस्ट. इसी तरह अगर मैं ये जुमला बोलूँ, शी इज़ अनलाइक इन मैनी रेस्पेक्ट, शी इज़ अनलाइक इन मैनी रेस्पेक्ट, वो सबसे ज़्यादा मुनफरिद इंसान है. शी इज़ अनलाइक इन मैनी रेस्पेक्ट. अनलाइक का मतलब है मुनफरिद, यानी डिफरेंट. तो अनलाइक के बारे में आज आपने ये वीडियो देखी, आपको समझ में आ गई होगी, और इसकी कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, कई इसके जुमले बना के एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, और आप इसको सीख सकते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ठीक है, you will turn out to be unlike, you will turn out to be unlike in all those students who are studying with you. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम मुनफरिद साबित होगे उन तमाम तालिब इल्मों में जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं. कितना प्यारा जुमला बना है. यू नो, इट्स गोइंग टू बी वेरी यू नो lengthy or longer sentence, but I hope that you would have enjoyed this sentence. और जितना लैंडी और लंबा जुमला हम बनाते हैं, या किसी भी जुमले को हम बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो कहने का मकसद यहाँ पे ये बनता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा लर्निंग का बायस होता है. वी हैव टू प्रोलॉन्ग आवर कॉन्वर्सेशन, वी हैव टू कंटिन्यू. ओके, तो अगर देखा जाए तो अनलाइक का इस्तेमाल देखें. आपने सीखा कि अनलाइक का मतलब पसंद, यू नो, लोग समझते हैं कि इसका मतलब है नापसंदीदा, मैं पसंद नहीं करता. ऐसा नहीं है ये. इसका मतलब है मुनफरिद, डिफरेंट. शी इज़ अनलाइक देन हर सिस्टर, शी इज़ अनलाइक देन हर सिस्टर. वो अपनी बहन से जो है बहुत ज़्यादा मुनफरिद है. देखें कितना अलग सा जुमला बना है. अब वो अनलाइक कोई भी बोलेगा तो उसके जहन में ये आएगा, अगले बंदे के जहन में ये आएगा कि यार ये क्या बोल रहा है, कंफ्यूज होगा. तो इसमें कंफ्यूजन होती है. अनलाइक का मतलब है मुनफरिद. बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट एग्जैक्टली दे रिक्वेस्टेड मी दैट सर वाई यू डोंट टीच दिस टॉपिक. तो मैंने सोचा, यू नो, आई थिंक आई शुड कम अप, यू नो, इस टॉपिक के साथ मुझे आगे आना चाहिए. और मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूं. मेरी कोशिश रहती है, मैं बहरहाल एक इंसान ही हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि आपको समझाऊँ. द वे आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. आई होप यू वुड हैव गॉट माई लेक्चर टुडे, विच एग्जैक्टली वॉज वेरी नाइस, विच वॉज वेरी, यू नो, इंटरेस्टिंग. और आपने इसको इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो कुछ नया सीख सकें. बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं ये टॉपिक आपके लिए लाया. और यू नो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नाइस है. इसे आप इस्तेमाल करें, अनलाइक का इस्तेमाल करें अपनी इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर करने के लिए. अपने स्पोकन स्किल्स में इसका इस्तेमाल करें. जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, आई थिंक इन यू नो कम्युनिकेशन में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द डिफरेंट गाइज, तो आई थिंक यूटिलाइज इट. आप डिफरेंट बोलते हैं ना, आप डिफरेंट की जगह अनलाइक का भी इस्तेमाल करें. डिफरेंट भी बोल सकते हैं, नो डाउट. यू आर डिफरेंट देन अदर, आई एम डिफरेंट देन अदर, यू आर अनलाइक देन अदर, आई एम अनलाइक देन अदर. मैं मुनफरिद हूँ दूसरों से. तो कहने का मकसद यहाँ पे बनता है कि यानी ये क्वालिटी वर्ड है, इसका इस्तेमाल करें. अनलाइक जो है वो बहुत खूबसूरत वर्ड है. शी सीम्स टू बी अनलाइक देन हर ब्रदर एंड सिस्टर. She seems to be unlike, you know, she seems to be unlike than her sibling. वो बिल्कुल मुनफरिद दिखाई देती है अपने बहन भाइयों से. She seems to be different, ये भी बोल सकते हैं आप. She seems to be unlike, ये भी बोल सकते हैं आप. यानी दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अनलाइक एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें नई चीज़ों के बारे में जो है मालूमात होनी चाहिए. अब डिफरेंट तो सभी बोल रहे होते हैं, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, हर आदमी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन अनलाइक हर एक नहीं कर रहा होता. शी सीम्स टू बी अनलाइक देन हर सिबलिंग.
शी सीम्स टू बी अनलाइक देन हर सिबलिंग, वो यानी अपने बहन भाइयों से मुनफरिद दिखाई देती है। शी सीम्स टू बी अनलाइक देन हर सिबलिंग, यानी वो अपने बहन भाइयों से मुनफरिद दिखाई देती है या देता है। ही लगा देंगे तो देता हो जाएगा। तो आई थिंक यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू आर गोइंग टू लाइक मी, शेयर मी, और कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी लेक्चर आपने अब तक मेरे जो है वो देखे हैं इसको शेयर भी कीजिए और आगे तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी चैनल है आपका, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा दूसरे भी टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करूँ, तो इसके साथ ही आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो राइट हेयर। आई होप यू गाइज वुड हैव एंजॉयड द वीडियो। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।